آداب، آج کے پروگرام میں ایک بار پھر میں حاضر ہوں شہاب اور ہمارے ساتھ برطانیہ سے موجود ہے شیراز پراچا صاحب، جو ایک مانے جانے صحافی اور استاد ہیں۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان تعلقات ایک بار پھر کشیدگی کے راہ پر ہیں۔ ایک جانب یہ صورتحال ایک سنگین بحران کو جنم دے رہی ہے، تو دوسری جانب یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کری ہے، آیا اس بحران میں بہتری کا کوئی موقع بھی چھپا ہوتا ہے؟ آج کے پروگرام میں ہم انہی پہلو کو جانچیں گے۔ کیا نیوکلیئر خطرہ محض دھمکی ہے یا حقیقی تباہی کا خدشہ؟ اور کیا ہم اس بحران کو نئے دور کے آغاز میں بدل سکتے ہیں؟ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان حالیہ کشیدگی کو ہم عالمی سیاست میں ٹریجڈی کے طور پر دیکھیں یا کامیڈی کے طور پر؟ شکریہ شہاب۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کچھ ہو رہا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ایک کامیڈی ہے اور اس کامیڈی میں ایک ٹریجڈی بھی ہے۔ کامیڈی اس لحاظ سے ہے کہ دنیا بھر کے لوگ پاکستان اور ہندوستان کے لوگوں کو وہ ایک جیسا سمجھتے ہیں۔ ہمارے رویے، ہمارے رد عمل، ہمارا ریئیکشن، ہمارا کلچر، ہماری جو تاریخ ہے وہ مشترک ہے، اور ہماری عادات بھی تقریباً ایک جیسی ہیں۔ اور یہ اب کی مار کے دیکھ والی جو مینٹلٹی ہے یہ پاکستان اور ہندوستان دونوں میں کامن ہے۔ تو اس لحاظ سے جیسے کہ آپ نے دیکھا ڈونلڈ ٹرمپ نے جو رد عمل ظاہر کیا ہے، ابھی لیٹسٹ جو ٹینشن آئی ہے، انہوں نے کہا یہ آپس میں ایسا کرتے رہتے ہیں، اور دوسرے جو دنیا کے ممالک ہیں وہ بھی اس کو یہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ پچھلے 70-80 سال سے پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ہے یہ اس قسم کا یہ بڑک بازی اور یہ جو بات ہو رہی ہے، لیکن اس میں جو اس کا جو سیریس پہلو ہے، اس میں جو ٹریجڈی ہے کہ اس قسم کی بڑک بازی اور اس قسم کے آپس میں جو ان کی ٹینشن ہے، اس کے نتیجے میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان 4 جنگیں ہو چکی ہیں، اور ان جنگوں کے بعد پاکستان اور ہندوستان جو ہیں وہ ایٹمی دھماکے بھی کر چکے ہیں۔ تو اب یہ دونوں نیوکلیئر پاورز ہیں، اور نیوکلیئر پاورز جو ہیں ان کو ذمہ دار ہونا چاہیے۔ ان کو بات بات پر یہ جو ہمارے ہاں لوگ ایٹم بم کا حوالہ دیتے ہیں، ان کو اندازہ نہیں ہے کہ جنگ کتنی خطرناک چیز ہے، کتنی تباہ کن جنگ ہے، خطرناک اور تباہ کن چیز ہے، جس کے نتیجے میں آپ نہ صرف مرتے ہیں بلکہ آپ بہت دردناک موت مرتے ہیں۔ اور اس وقت یہ 1 ارب لوگوں سے زیادہ کا مستقبل ہے جو کہ براہ راست اس جنگ سے مستقل، ان کی زندگیوں کا سوال ہے، جو کہ اگر کوئی نیوکلیئر جنگ ہوئی تو وہ ہندوستان اور پاکستان کے لوگ اس سے سفر کریں گے۔ اس سے بنگلہ دیش بھی نہیں بچے گا، اس سے سری لنکا بھی نہیں بچے گا، اس سے افغانستان، ایران، جو ارد گرد وسط ایشیا تک کے ممالک کو اس سے خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ جو نیوکلیئر جنگ ہوتی ہے وہ اس کے اثرات اس علاقے تک محدود نہیں ہوتے۔ یہ ایسے باتیں ہیں کہ ہمارے پاس ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز ہیں، چھوٹے نیوکلیئر ویپن ہیں۔ جب آپ چھوٹا نیوکلیئر ویپن استعمال کریں گے تو دوسرا بڑا استعمال کرے گا، اور اس کے نتیجے میں بہت تباہی بربادی ہوگی۔ لہٰذا اس کو مذاق نہیں سمجھنا چاہیے، لیکن اس میں جیسے کہ میں نے کہا یہ کامیڈی بھی ہے۔ اگر دونوں طرف کی جو لیڈرشپ ہے وہ ویژن کا مظاہرہ کرے، وہ اسٹیٹسمین شپ کا مظاہرہ کرے، وہ اپنی مستقبل کی نسلوں کو بچانے کی بات کرے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کرائسس کو ایک اپرچونٹی سمجھنا چاہیے، اس کو ایک موقع سمجھنا چاہیے، اور اس میں دونوں ممالک کو آپس میں مل بیٹھ کے یہ ایک مستقل حل نکالنا چاہیے۔ دیکھیے، آپ کشمیریوں کو زبردستی اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے، چاہے وہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے کے لوگ ہوں، یا چاہے وہ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے لوگ ہوں۔ کشمیری عوام اگر نہیں چاہتے کہ وہ ان دونوں میں سے کسی ایک ریاست میں بھی رہے تو یہ ان کا حق ہے۔ یہ حق خود مختاری جو ہے وہ اقوام متحدہ بھی تسلیم کرتا ہے۔ آج کے دور میں کوئی کسی کو زبردستی اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ لہٰذا یہ جو کشمیر کے معاملے پر ہم لوگ بات کرتے ہیں، اس میں جو بڑے پلیئرز ہیں وہ کشمیر کے لوگ بھی ہیں۔ اگر کشمیر کے لوگ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یہ ان کی مرضی، اگر وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یہ ان کی مرضی، اور اگر وہ ایک علیحدہ ریاست بنا کے رہنا چاہتے ہیں تو ان کو یہ سوچنا ہوگا کہ وہ ہندوستان اور پاکستان دونوں کے ساتھ تعلقات بنا کے رکھیں گے۔ جیسے کہ میں پہلے کئی بار کہہ چکا ہوں کہ یہ انٹر کنیکٹڈ دنیا ہے، اس دنیا میں ریاستیں آئسولیشن میں نہیں رہ سکتی۔ اب
इंटरनेशनल अलायंसेस बन चुके हैं। हमारे सामने यूरोपीय यूनियन की मिसाल है, हमारे सामने एससीओ शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मिसाल है, हमारे सामने ब्रिक्स की मिसाल है, हमारे सामने जो फार्मर सोवियत यूनियन में बहुत सारी रियासतें, कई रियासतें ऐसी हैं जैसे कि आप देखें कि बेलारूस, रूस, किर्गिज़स्तान, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, इन्होंने आपस में एक कस्टम्स यूनियन क्रिएट की है। तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान को भी आपस में ताल्लुकात को दुरुस्त करने, बाहम तिजारत करने, बाहम आपस में ताल्लुकात को ठीक करने का ये मौका हो सकता है। और लेकिन अगर ये ना हुआ और हमने ये भड़कबाजी दोनों तरफ से जारी रखी तो उसके नतीजे में कोई हादसा हो सकता है। ये कई सालों से ये बात की जा रही है। जब तक ये हादसा नहीं हुआ तो लोग इसको फिर संजीदा नहीं लेंगे, लेकिन अगर ये हो गया, खुदा न ख्वास्ता ये हो गया, तो ये बहुत बड़ा सानिया होगा। ये आप सोचें, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लोग, आपके बच्चे, आपके वालिदैन, आपके अजीज रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपकी कौम, आपकी बिरादरी, आप खत्म हो जाएंगे, आपकी नस्लें खत्म हो जाएंगी, आपका कोई मुस्तकबिल नहीं होगा, ना हिंदुस्तान के लोगों का, ना पाकिस्तान के लोगों का। तो ये तो सोचना भी नहीं चाहिए कि हम ये न्यूक्लियर जंग की जो बात करते हैं, ये जो हम जंग को मजाक समझते हैं, जिसको हम टीवी चैनल्स के ऊपर डिबेट का मौजू बनाते हैं, और वो हिंदुस्तान के लोग टीवी चैनल्स पर बैठे हुए जो उनके तजिया निगार हैं, रिटायर्ड फौजीज हैं, फौजी जर्नल हैं और ऑफिसर हैं, वो जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं वो इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना ज़बान है। वो ये समझते हैं कि हिंदुस्तान चूँकि बड़ा है, हिंदुस्तान की चूँकि मईशत मजबूत है, हिंदुस्तान की चूँकि आबादी ज़्यादा है, लिहाजा वो पाकिस्तान को जंगी तौर पर शिकस्त दे सकता है। ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, पाकिस्तान ने डेस्परेशन में कार्रवाई करनी है और उसका नुकसान हिंदुस्तान को भी होगा। लिहाजा ये जो सोच है, इसको दोनों तरफ से सियासतदानों को, मैं बिलावल भुट्टो साहब की तकरीर सुन रहा था, उन्होंने इसको एक सियासी मौका समझा है। और जो नहरों का मसला है उधर शुरू था सिंध में, वो चूँकि उस पर अभी हमने एक फैसला किया है कि इसका फैसला जो है आइंदा आने वाली जो कमेटी है एक नेशनल उसकी, उसमें किया जाएगा, कौमी इक्तिसादी कमेटी या व्हाटएवर। तो उस पर अब उन्होंने कह दिया कि हम मोदी को इस बात की इजाज़त नहीं देंगे कि वो, तो इसको वो सियासी एक नारे के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं। और मोदी बिहार में आने वाले इलेक्शन की वजह से वो पाकिस्तान के साथ जो है तनाज़ात को इस्तेमाल कर रहा है। सर, पाकिस्तान की जानिब से क्या मौसर हिकमत अमली अपनाई जा सकती है इस हवाले से? दयानतदारी के साथ, अगर कोई खुलूस से जेन्युइन है, सिंसियर है, तो हमें दयानतदारी से हिंदुस्तान को भी और पाकिस्तान को भी अपने किरदार का जो हमने अदा किया है उसका जायज़ा लेना चाहिए। बीइंग पाकिस्तानी, मैं समझता हूँ कि सेल्फ क्रिटिसिज्म बहुत ज़रूरी होता है। और इस सेल्फ क्रिटिसिज्म का मतलब ये नहीं है कि हम कोई पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करते, या हम मुहिब वतन नहीं हैं, या हमें किसी से उसका हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट चाहिए। हकीकत ये है कि हिंदुस्तान में लोग ये समझते हैं, पहले हिंदुस्तान पर मुसलमान हमलावर आते रहे, वस्त एशिया से आते रहे, अरब ममालिक से आते रहे। हिंदुस्तान में उन्होंने एक तारीखी नरेटिव ये बना दिया है, एक बयानिया ये बना दिया है कि मुसलमानों ने पहले आकर हिंदुस्तान पर कब्जा किया, हिंदू तहजीब को नुकसान पहुंचाया। जो ये सिंधु की तहजीब थी, पाको हिंद की जो तहजीब थी, उसको उन्होंने नुकसान पहुंचाया, और यहाँ आकर उन्होंने हमारे वसाइल को लूटा और हमारे मुल्क पर हुक्मरानी की, कब्जा किया 1000 साल तक। और उसके बाद मुसलमान थे जिन्होंने हिंदुस्तान का बंटवारा किया, हिंदुस्तान को तकसीम किया। तो ये एक बयानिया हिंदुस्तान में पहले बयान किया जाता था जो अब मजबूत हो चुका है। अच्छी बात ये थी कि जब हिंदुस्तान पर कांग्रेस बरसर इक़्तिदार थी तो आप शुरू में देख लें कि हिंदुस्तान सेकुलर था, हिंदुस्तान जो है वो पीस के लिए जाना जाता था, हिंदुस्तान नॉन अलाइंड मूवमेंट के साथ रहा था। सर्द जंग में हिंदुस्तान ने अमेरिका का साथ नहीं दिया था, सर्द जंग में हिंदुस्तान की जो पॉलिसी थी वो पीस की पॉलिसी थी। लेकिन पाकिस्तान के बनने के बाद पाकिस्तान पर ब्यूरोक्रेसी और फौज ने हुक्मरानी की, यहाँ तक कि जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग हुए तो उस वक्त जिन्ना साहब जिंदा थे। जिन्ना साहब ने ये इजाज़त दी, ये हुक्म दिया पाकिस्तान की फौज के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, जो कि एक अंग्रेज था, जनरल ग्रीसी को, कि जाओ और कश्मीर में मुदाखलत करो। उसने इनकार कर दिया। तो पाकिस्तान में सिकंदर मिर्जा जैसे लोगों ने जिन्ना साहब की मौजूदगी में हमने कश्मीर में मुदाखलत की सन 1948 में। और जो आज जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जो कश्मीर है, इस पर हमने फौजी जो कबायलियों के लश्कर थे वो भेजकर हमने उस पर कब्जा किया। तो वहां से बुनियाद पड़ी और ये मसला अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में गया और उन्होंने फिर करारदादें पास की कि ये
सेल्फ डिटर्मिनेशन की बुनियाद पर कश्मीर का फैसला होना चाहिए। उसके बाद पाकिस्तान पर फौजी आमरीत आई, पाकिस्तान पर ब्यूरोक्रेसी और फौज ने हुकूमत शुरू की, और जनरल अयूब खान के दौर में ये पाकिस्तान था जिसने कश्मीर में मुदाखलत की, ये पाकिस्तान था जिसने कश्मीर का महाज गर्म किया। और 1965 में चूंकि पाकिस्तान ने पहल की थी, लिहाजा हिंदुस्तान ने फिर लाहौर का महाज खोला और 17 दिनों तक की जंग हुई दोनों के दरमियान, जिसमें अगर बैरूनी वो ना आती, मुदाखलत नहीं की जाती, तो बहुत मुश्किल था ये जंग जो है पाकिस्तान के लिए जीतना, या पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती थी। तो ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एक स्टेलमेट कायम हुआ। हम कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रोपेगेंडा किया जाता है कि पाकिस्तान ने सन 65 में फतह हासिल की, जो कि एक तकरीबन एक स्टेलमेट हुआ, और बैरूनी उसकी वजह से ये जो है शास्त्री के साथ हमने फिर मुआहिदा किया ताशकंद में, और ये 65 की जंग खत्म हुई। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने चूंकि बंगालियों के साथ बहुत जुल्म और सितम किया, बंगालियों के साथ पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी ने नारवा सलूक किया, वहाँ पे रिजेंटमेंट हुई। फिर 70 के इंतखाबात हुए, वहाँ पर अयूब खान ने हुकूमत एक दूसरे जर्नैल के हवाले कर दी, खुद रिटायरमेंट ले ली, वो मुस्तफ़ी हो गया। और फिर याह्या खान ने जो है मार्च 1971 में बांग्लादेश में फौजी ऑपरेशन किया, और उस फौजी ऑपरेशन में बंगाली लोगों के खिलाफ जो मिलिट्री ऑपरेशन कार्रवाई की गई, उनकी मदद फिर मुक्ति बहानी की सूरत में हिंदुस्तान ने की, और हिंदुस्तान की मदद से बांग्लादेश को आज़ादी मिली। फिर हम देखते हैं कि हिंदुस्तान ने एटमी धमाका कर दिया, और पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा कि हम भी अब अपना एटमी प्रोग्राम शुरू करेंगे। फिर ज़ियाउल हक के दौर में भी उन्होंने कुछ कोशिश की, कोई क्रिकेट डिप्लोमेसी की, यहाँ तक कि हिंदुस्तान ने जब सियाचिन के ऊपर कब्जा किया, तो जनरल ज़िया ने कहा ऐसी कोई वहाँ पे तो घास का तिनका भी नहीं उठता। जनरल ज़िया जो है, चूंकि वो फौजी डिक्टेटर था, उसके साथ अवामी हिमायत नहीं थी, वो अफगानिस्तान में बहुत मुलविस था सोवियत यूनियन के खिलाफ, तो उसकी कोशिश थी कि हिंदुस्तान के साथ टेंशन ना हो। लेकिन जब अफगानिस्तान में जिहाद ख़त्म हुआ, सो कॉल्ड अमेरिका, सऊदी अरब, इसराइल और पाकिस्तान का और मगरबी दुनिया का, तो उसके बाद जनरल हमीद गुल की सूरत में पाकिस्तान के ऐसे फौजी जर्नैल थे जिन्होंने 1989 में जो है कश्मीर में जो वहाँ पर तहरीक आज़ादी, जो पुरअमन सियासी जद्दोजहद कर रहे थे कश्मीरी, उसमें मिलिटेंसी को हवा दी। तो पाकिस्तान ने बड़ी इसमें किरदार अदा किया है, और पाकिस्तान में ये जो जमात इस्लामी के ज़ेर असर, फौजी डिक्टेटर के असर, ये एक बयानिया बनाया गया कि हम दिल्ली के लाल किले पर झंडा लहराएंगे, हम हिंदुस्तान को तोड़ देंगे। फिर सोवियत यूनियन की अफवाज जो अफगानिस्तान से निकल गई, तो हमने कहा कि हम सोवियत यूनियन को तोड़ सकते हैं, तो हम हिंदुस्तान को भी तोड़ सकते हैं। तो ये वो मेंटालिटी थी, जो हमारा जो बयानिया था हिंदुस्तान को तकसीम करने का, हिंदुस्तान को तोड़ने का, उसके रद्द अमल में हिंदुस्तान में जो है हिंदू नेशनलिज्म जो है वो ज़्यादा बढ़ा। हिंदू जो थे नेशनलिस्ट, वो पहले से थे इंतहा पसंद, वो मौजूद थे। उन्होंने गांधी का कत्ल किया, लेकिन हिंदुस्तान का सेकुलर चेहरा बरकरार रहा। लेकिन चूंकि पाकिस्तान ने अफगान जिहाद से जो जिहादी कल्चर और जो जिहादी बयानिया बनाया, उसके रद्द अमल में हिंदुस्तान में एक मौका मिला, बीजेपी जैसी पार्टियां जो हैं वो ताकतवर हुई। फिर हम देखते हैं कि 1997 में 98 में वो जो थे, क्या नाम है, हिंदुस्तान के, बल्कि 99 था शायद, हिंदुस्तान में बीजेपी के वज़ीर आज़म थे, वो लाहौर बस में आए। नवाज शरीफ ने और पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ थे, उन्होंने बहुत बड़ा एक स्टेट्समैनशिप का मुजाहरा किया, और हिंदुस्तान की क़यादत ने भी, और लाहौर का मुआहिदा हुआ, और लाहौर में एक बहुत अमन के लिए सचमुच की एक कोशिश हुई दोनों तरफ से। लेकिन उसे जनरल मुशर्रफ और उसके साथी जर्नैलों ने सबोताज किया, उन्होंने कारगिल किया, जिसकी वजह से जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग थी, जो ट्रस्ट था, वो ख़त्म हुआ, और बीजेपी को ये मौका मिल गया कि वो पाकिस्तान को कंडेम करे, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करे। अगर हम इस पूरी तारीख को देखें, तो पाकिस्तान में अवामी सतह पर हिंदुस्तान के खिलाफ कभी मुखालिफत नहीं रही, हिंदुस्तान के खिलाफ कभी दुश्मनी नहीं रही, लेकिन स्टेट लेवल पर पाकिस्तान के जो हुक्मरान तबकात थे, सिविल और मिलिट्री अशराफिया और उनके हवारी मजहबी जो अंसर थे, जैसे जमात इस्लामी और जो दूसरे मिलिटेंट जिहादी ग्रुप थे, उनका ये एजेंडा रहा कि हमने हिंदुस्तान को तोड़ना है। लेकिन अवामी तौर पर आप देखें ना, 80 की दहाई में हिंदुस्तानी फिल्में पाकिस्तान में आना शुरू हुई VCR के जरिए, और लोगों ने हिंदुस्तानी फिल्में देखी, हिंदुस्तानी कल्चर देखा। फिर पाकिस्तान इंडिया पीपल टू पीपल कांटेक्ट हुआ, फ्रेंडशिप की बात हुई, तो पाकिस्तानी लोग हिंदुस्तान से
वैसी नफरत नहीं करते। और पाकिस्तान के लोग चूँकि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मदाखलत के ख़िलाफ़ रहे हैं और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करते रहे हैं, तो अगर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट मिलिट्री ये कहती थी कि हिंदुस्तान पर कब्ज़ा करना है, उसको तोड़ना है, तो अवाम उसके उस बयानिए के साथ नहीं थे, लेकिन ये स्टेट पॉलिसी थी। इसके बरक्स हिंदुस्तान में चूंकि फौजी इक़्तिदार में नहीं रहे, फौज ने इक़्तिदार पर कब्जा नहीं किया, वहाँ पर सियासी जमहूरियत मजबूत रही, सियासी इक़्तिदार रहा, तो हिंदुस्तान में सियासी जमातों ने जो नैरेटिव अपनाया वही नैरेटिव वहाँ के अवाम ने अपनाया। जब तक कि कांग्रेस जो थी वो मजबूत थी, वो इक़्तिदार में थी, तो पाकिस्तान के खिलाफ उनका जो बयानिया था वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। आप ये देख लेना कि हिंदुस्तान ने कितने बड़े दिल का मुजाहरा किया। सन 1971 में पाकिस्तान टूट चुका था, पाकिस्तान को शिकस्त हो चुकी थी, लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो, एक हारे हुए मुल्क के वज़ीर आज़म, एक शिकस्त खुर्दा वज़ीर आज़म जो थे, वो जब खाली हाथ हिंदुस्तान गए तो उन्होंने मुज़ाकरात की मेज़ पर इंदिरा गांधी के साथ बात की, और इंदिरा गांधी ने बावजूद इसके कि वो फातेह थी, बावजूद इसके कि वो मजबूत पोजीशन में थी, उन्होंने भुट्टो के साथ मिलकर शिमला में मुआहिदा किया पाकिस्तान और हिंदुस्तान में, और उन्होंने अमन की बात की। फिर हमने देखा कि फिर पाकिस्तान ने उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया, हिंदुस्तान के में अलहदगी पसंदों को, और फिर खालिस्तान वालों ने इंदिरा गांधी का कत्ल कर दिया 1984 में। तो हिंदुस्तान ने ये कहा, और कांग्रेस इसलिए कमज़ोर हुई कि पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान को तोड़ना चाहता है। आप देखिए 1989 में जब पाकिस्तान में जमहूरियत बहाल हुई और वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो साहबा बनी पहली मरतबा पाकिस्तान की वज़ीर आज़म 1988 के इंतखाबात में, तो बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत बड़ी कमज़ोर थी। उनके वज़ीर ख़ारजा उनके अपने नहीं थे, उनके सदर उनके साथ नहीं थे, फ़ौज के पीछे बैठी हुई थी, जनरल असलम बेग और हमीद गुल थे। लेकिन बेनज़ीर भुट्टो की दावत पर राजीव गांधी पाकिस्तान आए। जब राजीव गांधी पाकिस्तान आए तो इस्लामाबाद की सड़कों पर जो है ऐसे प्रोपेगेंडा किया गया कि कश्मीर हाईवे का नाम बदल दिया गया। फिर ये कहा गया इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से और उनके हामी सहाफ़ियों की जानिब से ये प्रोपेगेंडा किया गया बेनज़ीर के खिलाफ कि राजीव गांधी को पाकिस्तान ने सिखों की फरिश्तें दी हैं। तो ये पाकिस्तान की तरफ से एक नफरत अंगेज जो है चलाई जाती रही मुहिम, और पाकिस्तान की इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो को भी एतमाद में नहीं लिया गया, और उनके दौर में कश्मीर में जो है वो मिलिटेंसी की गई। बाद में जब जनरल मुशर्रफ खुद इक़्तिदार में आए तो फिर जनरल मुशर्रफ ने कोशिश की कि हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर किया जाए, और उन्होंने डिप्लोमेसी और हिंदुस्तान के साथ वो जाकर वहाँ पर बातें करते रहे। लेकिन उस वक्त तक पुलों के नीचे से पानी बह चुका था। फिर मामला बिल्कुल उलट हो गया। जनरल मुशर्रफ के दौर से पाकिस्तान में हिंदुस्तान के खिलाफ इतना एग्रेशन नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में सियासी पार्टी पॉपुलर पार्टी जो है वो बीजेपी जो है वो पाकिस्तान की मुखालिफत करके एक ऐसा प्रोपेगेंडा करती है जिसमें वो इलेक्शन में कामयाब होती है, और हिंदुस्तान में इंतहा पसंदी जो है वो मजबूत हुई है, हिंदुस्तान में तंग नजरी ज़्यादा बढ़ी है, हिंदुस्तान जो है वो एंटी पाकिस्तान मुहिम चलाता है। हालांकि पाकिस्तान के इंतखाबी मुहिम में हिंदुस्तान के खिलाफ एजेंडा बात नहीं होती, मीडिया पे भी बात नहीं होती, लेकिन हिंदुस्तान में सारा पॉलिटिकल एजेंडा जो है वो एंटी पाकिस्तान है। फिर 2008 में जो वाक़यात होते हैं, बम्बई में हमले होते हैं या हिंदुस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ होती हैं, तो उसके नतीजे में और उसके अगर लिंक्स पाकिस्तान से मिलते हैं तो उससे बीजेपी मजबूत होती है, मोदी मजबूत होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान में आज जो हम इंतहा पसंदी देख रहे हैं, आज जो हिंदुस्तान का सेकुलर चेहरा मस्क हो गया है, आज जो हिंदुस्तान में मोदी जैसे लोग जो हैं वो ताकत में आए हैं, तो उसमें कहीं न कहीं पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान का किरदार है, पाकिस्तान की गलतियां हैं। हमें ये तस्लीम करना होगा। अब भी अगर पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अगर चाहें वो पहल करें। देखिए उनके कहने के ऊपर 2013 में नवाज शरीफ के कहने के ऊपर मोदी साहब जो हैं वो पाकिस्तान आए थे, और वो उनके घर एक शादी की तकरीब में, निजी तकरीब में वो उन्होंने शिरकत की थी। तो नवाज शरीफ साहब जैसे सियासतदान जो हैं, अगर वो उसमें एक्टिव हों, वो एक स्टेट्समैन है, उनका तजर्बा है, और पाकिस्तान की मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट
पाकिस्तान की मौजूदा फौजी क़यादत, वो जिस तरह पाकिस्तान की इकनॉमिक रिवाइवल की बात कर रही है, पाकिस्तान को दोबारा यानी उसकी मईशत को बहाल करने की कोशिश कर रही है, स्टेबिलिटी कर रही है कर रही है, तो उसको ये महाज ठंडा करना पड़ेगा। इस वक्त हिंदुस्तान ज़्यादती कर रहा है। हिंदुस्तान ने ये जो इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया है, इसकी एविडेंस उन्हें देनी पड़ेगी, और अगर कोई एविडेंस हो तो एक जॉइंट कमीशन बनना चाहिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, जिसमें आलमी जो इदारे हैं या बैरूनी ममालिक के भी कुछ इन्वेस्टिगेटिव उनको शामिल करना चाहिए, और ये जितने माजी में वाक़यात हुए हैं इनकी इन्वेस्टिगेशन हो। अब हम माजी को तब्दील तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर हिंदुस्तान की गलती है, जाफर एक्सप्रेस का वाक़या जब हम कहते हैं, उसको उनको उस पे माज़रत करनी चाहिए, उनको इस किस्म की मदाखलत का सिलसिला रोकना चाहिए, और अगर पाकिस्तान की जानिब से कोई ज़्यादती हुई है, कोई ऐसी चीज़ हुई है जो कि नहीं होनी चाहिए, उस पर उन्हें माज़रत करनी चाहिए और आइंदा के लिए एक रास्ता बनाना चाहिए। अभी ये जो पानी की जंग की बात हो रही है, ये बहुत ख़तरनाक है। ये बहुत ख़तरनाक बात है, इसलिए कि पानी को अगर आप बुनियाद बनाकर जंग करेंगे, तो पूरी दुनिया में माहौलियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं, मौसमों की तब्दीलियाँ आ रही हैं, और आइंदा जंगें पूरी दुनिया में पानी पे हो सकती हैं। तो ये जो दरिया हैं, ये सिर्फ़ पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान मुश्तरक नहीं है। दुनिया के बहुत सारे ममालिक हैं, जिनमें दरिया जो हैं, वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में बहते हैं, और पानी के ऊपर लोग जो हैं वो बहुत सिविलाइज्ड अंदाज में डिप्लोमेसी को इस्तेमाल करके मुज़ाकरात करते हैं, बात करते हैं और मुआहदे करते हैं। सिंध तास का मंसूबा हिंदुस्तान समझता है कि उसके हक में नहीं था, और पाकिस्तान समझता है उसके, वो अयूब खान पर पाकिस्तानी सियासतदान उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि उसने 3 दरिया बेच दिए, और वह हिंदुस्तान वाले कहते हैं कि हमारे 3 दरिया बेच दिए। वो जो होना था वो हो गया। पाकिस्तान की जो ज़राअत है, पाकिस्तान की जो मईशत है, उसका इन्हिसार इस पानी पर है, और इस पानी को अगर कोई रोकने की बात करेगा तो ये बहुत बड़ा ख़तरनाक बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर इमरजेंसी में अब हमें अमेरिका या कनाडा या बरतानिया का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि वो आएंगे और सालिसी करेंगे। हमें ये मसाइल खुद मैच्योर अक़वाम की तरह आपस में तय करने होंगे, आपस में हल करने होंगे, और ये जो नई शक्ल दी जा रही है तनाज़ात को, ये देना मुनासिब नहीं होगा। सर ये बताइएगा, क्या न्यूक्लियर हथियार महज दिफाई हिकमत अमली है या बर्बादी का रास्ता है? हिंदुस्तान की मुखालिफत को पाकिस्तान में, और हिंदुस्तान में पाकिस्तान की मुखालिफत को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बीजेपी या भारतीय जनता पार्टी जो है, उनका ये ख्याल है कि उन्होंने इलेक्शन में अगर कामयाबी हासिल करनी है, तो उसमें वो पाकिस्तान मुखालिफ बात करेंगे, मुसलमान मुखालिफ बात करेंगे, और उससे वो अपनी जो उनकी वोट बेस है उसको वो बढ़ाएंगे। तो जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि इसमें विशनरी लीडरशिप की ज़रूरत है। इसमें जो साबिका रिटायर्ड जो डिप्लोमेट्स हैं उनको इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। इसमें एकेडेमिया को दोनों तरफ से इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। इसमें जो दूसरे सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। मिलिट्री के जो लोग हैं उनको इस्तेमाल करने चाहिए, और दोनों साइड को मिलकर एक, हम पड़ोसी तब्दील नहीं कर सकते। अगर हिंदुस्तान ये समझता है कि वो पाकिस्तान को ख़त्म कर देगा, ये तोड़ देगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर पाकिस्तान में कोई बदअमनी होगी, पाकिस्तान टूट जाएगा या पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, तो उसका ज़्यादा नुकसान हिंदुस्तान को होगा। आप देखिए, अफ़गानिस्तान में जो सिविल वार हुई, और हमने जो अफ़गानिस्तान में जो तजर्बात किए, और हमने समझा कि हम अफ़गानिस्तान को अपना सूबा 5वां बनाएंगे और स्ट्रेटेजिक डेप्थ होगी, और वहाँ पर कभी हम अपनी मर्ज़ी की हुकूमतें लाएंगे। नतीजा क्या हुआ? हिंदुस्तान में बदअमनी का बराह रास्त असर पाकिस्तान पे पड़ रहा है। पाकिस्तान में बदअमनी की वजह अफ़गानिस्तान में इंस्टेबिलिटी है, अफ़गानिस्तान में खाना जंगी है, अफ़गानिस्तान में जो है झगड़ा है, जिसके असरात पाकिस्तान पर पड़ रहे हैं, और पाकिस्तान उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। तो लिहाजा अगर पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी होगी, अगर इसको तोड़ा जाएगा, या इसको आप कहें कि हम बम मार के तबाह कर देंगे, या इनको ख़त्म तो नहीं कर सकते, तो रिजल्ट ये होगा कि आपके मुल्क में जो है इंस्टेबिलिटी होगी। आपके यहाँ 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं हिंदुस्तान के अंदर, उसके अलावा आपके यहाँ दूसरी बहुत सारी जो तबकात हैं जो वो रहते हैं। अगर आप हिंदुस्तान जो है उसमें 600 ज़बानें बोली जाती हैं। हिंदुस्तान एक मल्टी कल्चरल, मल्टी एथनिक कंट्री है। अगरचे वहाँ पर हिंदू जो हैं वो अक्सरियत में हैं, लेकिन इस अक्सरियत का ये मतलब नहीं है कि आप अक़लियतों के ऊपर अमरियत कायम करें, और अक़लियतों के ऊपर एक बयानिया जिसकी बुनियाद नफ़रत है, जिसकी बुनियाद डिवीज़न है, जिसकी बुनियाद दूसरों की एथनिक क्लिंजिंग है, अगर आप ये करेंगे तो आप कभी भी
امن میں سے نہیں رہ سکتے۔ ہندوستان ایک سپر پاور بننا چاہتا ہے، ایک ریجنل پاور بننا چاہتا ہے۔ وہ اس وقت دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی ہے اور چوتھی بڑی اکانومی بننے جا رہا ہے۔ اگر ہندوستان جنگ کا راستہ اختیار کرے گا تو ہندوستان جو ترقی کر رہا ہے، ہندوستان جو دنیا میں اپنا ایک امیج بنا رہا ہے، وہ راستہ اس کا رکے گا۔ اور ہندوستان کے لوگوں کو، ہندوستان کی پبلک کو، ہندوستان کے میڈیا کو، ہندوستان کے انٹیلیجنسیا کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ آپ یہ مستقل جنگ نہیں جاری رکھ سکتے۔ یہ ٹینشنز آپ کی، یہ جو آپ نے پاکستان کے ساتھ دشمنی اور پاکستان کی مخالفت کی وجہ سے آپ نے جو اپنے وسائل اس میں جھونک رہے ہیں، اگر آپ پاکستان کے ساتھ، یقیناً پاکستان کی سائڈ پر غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن اس میں پاکستان کے عوام کی غلطی نہیں تھی، اس میں غلطی پاکستان کے لوگوں کی نہیں تھی، یہ پاکستان کے ملٹری ڈکٹیٹرز تھے جنہوں نے ایسا کیا۔ دیکھیے، جب پاکستان میں پہلے الیکٹڈ پرائم منسٹر آئے ذوالفقار علی بھٹو، تو انہوں نے جا کر آپ کے ساتھ شملہ معاہدہ کیا، آپ کے ساتھ جا کر بات چیت کی۔ پاکستان کے دوسرے الیکٹڈ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے آپ کے ساتھ صلح کی کوشش کی۔ تو آپ کوشش کیجئے کہ پاکستان میں آپ ایسی بات نہ کریں جو کہ پاکستان کے عوام کے خلاف ہو، جو پاکستان کے عوام کی معاشی معیشت یا ان کی سروائیول کے لیے خطرہ بن جائے۔ اگر آپ پاکستان میں سندھ طاس معاہدے کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے تو آپ پاکستان کے جرنیلوں یا اسٹیبلشمنٹ کو صرف نقصان ہی پہنچائیں گے، یہ تو آپ پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کے مستقبل سے کھیل رہے ہیں۔ تو جب آپ ان کی زندگی سے کھیلیں گے، جب آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی زراعت کا انحصار ان دریاؤں کے پانی کے اوپر ہے، جن میں سے آلریڈی 3 دریا آپ کو یعنی پاکستان نے کمپرومائز کر کے ایک ڈکٹیٹر نے آپ کو دیے، اب جب باقی 3 دریاؤں پر ظاہر ہے آپ اس پر جب بند بنائیں گے یا آپ اس کو ڈائیورٹ کریں گے، اس پہ ٹائم لگے گا، لیکن اگر آپ یہ ارادہ ظاہر کر رہے ہیں تو آپ پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کو اپنا دشمن بنا رہے ہیں، ایک ایسے ملک کو جو کہ پھر نیوکلیئر طاقت ہے۔ پھر یہ نہیں ہوگا کہ آپ کی تعداد زیادہ ہے اور آپ پاکستان سے کمزور ہیں، تو یہ اس طرف جانا بھی نہیں چاہیے، اس طرف سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ جو معاہدہ ہو چکا اس کو مزید بہتر کرنا چاہیے۔ پاکستان سے ہندوستان فائدہ حاصل کر سکتا ہے باہمی تجارت کر کے، باہمی تعلقات کو بہتر کر کے۔ پاکستان کے ذریعے ہندوستان کو راہداری مل سکتی ہے، راستہ مل سکتا ہے وسط ایشیا تک جانے تک، یوریشیا تک جانے تک۔ ہندوستان کا اور روس کا آپس میں تاریخی تعلق ہے، ہندوستان اور روس کے درمیان اگر کوئی برج بن سکتا ہے تو وہ پاکستان بن سکتا ہے۔ ہندوستان اور وسط ایشیا کے درمیان اگر کوئی برج بن سکتا ہے، لینڈ برج، وہ پاکستان ہے۔ ہندوستان اور یورپ کے درمیان اگر یہ موٹر ویز بننے سے، ریل روڈ نیٹ ورک بننے سے یورپ اور ساؤتھ ایشیا کے درمیان فاصلے کم ہو جائیں گے۔ آپ ریلوے کے ذریعے، آپ دیکھیں نا، یہ جو چین کا BRI پروجیکٹ ہے یا رشیا کا جو نیٹ ورکس وہ بنا رہے ہیں، آپ برکس میں ہیں، آپ شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن میں اکٹھے ہیں۔ یہ کیا بات ہے کہ آپ جو پرانے تعصبات کو لے کر، 1000 سالہ پرانی اس کو لے کر دونوں طرف سے دشمنی کی بات کر رہے ہیں۔ پاکستان اقتصادی طور پر اسٹیبل ہوگا، مضبوط ہوگا اگر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات بہتر ہوں گے۔ پاکستان کو راہداری سے بہت سارے پیسے ملیں گے اگر جو انرجی کی ٹرانسپورٹ ہوگی ہندوستان تک۔ ہندوستان بہت بڑی مارکیٹ ہے، 1 ارب 40 کروڑ سے زیادہ لوگوں کی مارکیٹ ہے وہاں پر۔ یہ رشیا، چائنا، SCO ممالک کے لوگ وہاں پر اپنی چیزیں مارکیٹ کر سکتے ہیں اور وہاں سے انرجی جو ہے وہ ہندوستان کو آ سکتی ہے اور یہ افغانستان اور پاکستان کے راستے آئے گی۔ تو ہمیں تو ایک ایسی طرف جانا چاہیے جو کہ ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشیا کا آپس میں الائنس بنے یورپی یونین کی طرز پر۔ یہ جو جنگ کی باتیں ہیں اور بات بات پر مودی صاحب جو آ کے جلسوں میں جو تقریریں کرتے ہیں چند ووٹ حاصل کرنے کے لیے، وہ پورے بر صغیر کے لوگوں کو جو ہیں وہ اس میں جھونک رہے ہیں آگ میں۔ میں اس بات پر خوش ہوں، میں اس بات پر مطمئن ہوں، ہمارے بچپن میں، ہمارے لڑکپن میں، ہماری جوانی میں پاکستان کے موقف جو تھا وہ ہندوستان کے حوالے سے درست نہیں تھا۔ پاکستان میں جو ہندوستان کو توڑنے اور دلی کے لال قلعے پر جو ضیاء الحق کی پالیسی تھی، جو حمید گل کی پالیسی تھی، جو جہادی پالیسی تھی، وہ نعرے لگائے جاتے تھے۔ اب میں سمجھتا ہوں پاکستان میں بہت احساس پیدا ہو گیا ہے، پاکستان کے سیاستدان میچورٹی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، پاکستان کا میڈیا بھی، اگرچہ وہ ہندوستان کے رد عمل میں ایسی باتیں کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کا رویہ اگرچہ پرفیکٹ نہیں ہے، اس کو بہتر ہو سکتا ہے، لیکن اب ہندوستان کی جانب سے
एग्रेशन हो रहा है और ये एग्रेशन ज़बानी कलामी है, लेकिन जब आप नफ़रतों के बीज बोते हैं, जब आप नफ़रतों के पौधे लगाते हैं, तो वो तनावर दरख्त बनते हैं और इस नफ़रत के नतीजे में कोई बड़ा हादसा इसलिए हो सकता है कि दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं। हमें हिंदुस्तान के सिर्फ 1,40,42 करोड़ लोगों का नहीं सोचना, हमने 25 करोड़ मुसलमानों का पाकिस्तान का भी सोचना है और हिंदुस्तान के लोगों का भी सोचना है और बांग्लादेश और अफगानिस्तान के लोगों का भी सोचना है। तो विजनरी लीडरशिप को आगे आना चाहिए, सियासी लीडरशिप को दोनों साइड से आगे आना चाहिए और इस मसले को जो हमारे दरमियान तनाज़ात हैं, इनको वंस फॉर ऑल हल करना चाहिए। कोई प्रिडिक्टेबल, पायदार आपस में जो है ताल्लुकात बनाने चाहिए और ये जो जंगी जुनून है, इसको कम करके इन पैसों को, इन वसाइल को ह्यूमन डेवलपमेंट पर लगाना चाहिए, ह्यूमन तरक्की पर लगाना चाहिए। हिंदुओं को मुसलमान नहीं ख़त्म कर सकते और मुसलमानों को हिंदू नहीं ख़त्म कर सकते। आप दोनों ने साइड बाय साइड रहना है। दोनों तहजीबें हैं। हिंदू अपनी 4-5 हज़ार साल पुरानी तारीख रखते हैं, तहजीब रखते हैं, उनको हक है वो अगर इस तहजीब पर के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। और मुसलमानों की अपनी तारीख है, अपना कल्चर है, अपना विरसा है, इनको भी ये हक हासिल है। क्यों हम लोगों से नफरत करें? क्योंकि हम सब का ब्लड, अगर हमारी स्किन कलर काली है या सफ़ेद है, बाल सुनहरे हैं, आंखें नीली हैं या काली हैं, लेकिन हमारे खून का रंग सुर्ख है। हम ह्यूमैनिटी पर यकीन क्यों नहीं रखते? हम ह्यूमैनिटी को आगे क्यों नहीं बढ़ाते? थैंक यू सो मच सर आपका वक्त देने का। यकीनन जंग किसी भी मसले का हल नहीं, चाहे वो सरहदी तनाज़े पर हो या पानी के मसले पर हो। दोनों ममालिक को संजीदगी से इस मसले पर सोचना चाहिए। आज के प्रोग्राम में इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।